بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانیاں۔ ہر آنے والی نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹڈ نوٹیفیکیشنز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ الارم کی تیز آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر الارم بند کیا اور دوبارہ چادر منہ پر رکھ کر سونے کی کوشش کی، مگر نیند ایک دفعہ کھل جائے تو دوبارہ بہت مشکل سے آتی ہے۔ میں کچھ دیر بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، پھر میں نے چادر ہٹائی اور آنکھیں مسلتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور پھر آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بستر پر میرے برابر جہاں رات کو میری پیاری بیوی لیلا سوئی تھی، اب وہاں ایک بھیانک ڈھانچہ لیٹا ہوا تھا۔ خوف سے میں لرزنے لگا۔ پھر میں نے ہمت کی اور ڈرتے ڈرتے ڈھانچے کو ہاتھ لگایا تو میرے منہ سے ایک اطمینان بھری ٹھنڈی سانس نکل گئی، کیونکہ وہ ڈھانچہ مصنوعی تھا اور کسی اچھے پلاسٹک سے بنا ہوا تھا، لہٰذا پہلی نظر میں مجھے وہ اصلی لگا تھا۔ میں نے لات مار کر اس ڈھانچے کو بستر سے نیچے فرش پر پھینک دیا اور اپنی بیوی لیلا کو آوازیں دینے لگا۔ لیلا، یہ سب کیا ہے؟ لیلا ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے اس سے کہا، ایکسپریشنز۔ لیلا نے اطمینان سے جواب دیا اور چائے کا کپ میز پر رکھ کر فرش پہ پڑے ڈھانچے کو اٹھایا اور بڑے پیار سے اس پر سے فرضی دھول جھاڑتے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ یار، یہ سب کیا ہے؟ تم نے اچھے خاصے بیڈ روم کو ہارر ہاؤس بنا دیا ہے۔ میں نے کمرے میں ٹنگی خوفناک تصویروں اور پورٹریٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھی تو لگ رہی ہیں تصویریں، لیلا نے چائے کا کپ اٹھایا اور ایک سپ لیتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے رات کو خواب میں بھی یہی چڑیلیں دکھائی دیتی ہیں، میں بستر سے نیچے اترتے ہوئے بولا۔ جب تم ایک ہارر رائٹر سے شادی کرو گے تو تمہیں ایسا ماحول تو برداشت کرنا پڑے گا، اور یہ باتیں تمہیں شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھی۔ لیلا کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آ رہا تھا اور وہ بڑے آرام سے چائے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ میں مصر کے محکمہ پولیس میں انسپکٹر آف پولیس ہوں، اور میری پیاری راج دلاری بیوی، جس سے میری شادی بڑی جد و جہد کے بعد ہوئی، وہ ایک مشہور ہارر رائٹر ہے جس کی تحریریں ملک کے مشہور میگزین میں نہایت اہتمام کے ساتھ شائع ہوتی ہیں، اور قارئین بہت ذوق و شوق سے لیلا کی کہانیاں پڑھتے ہیں اور اس کی کہانیوں کو پسند کرتے ہیں اور اس کا انتظار کرتے ہیں۔ میں لیلا کی باتوں سے زچ ہو کر واش روم میں گھس گیا اور نہا دھو کر فرش پر فریش ہو کر باتھ روم سے نکلا تو میرے پیر کسی لجلجی چیز سے پر پڑ گیا، تو میں گھبرا کر اپنا پیر اٹھایا تو اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور دھڑام سے کمرے کے پکے فرش پر گر پڑا۔ میری اس طرح گرنے پر لیلا بے ساختہ ہنسنے لگی۔ ہمارے ملک کا تو قانون ہی زمین بوس ہو گیا ہے، لیلا نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر وہ چیز اٹھائی جس پر پیر پڑنے سے میں فرش پر گر پڑا تھا۔ وہ ایک بڑے سائز کی مکڑی تھی جو فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ لیلا، یہ کیا مصیبت ہے؟ تم نے گھر کو کیا بنا دیا ہے؟ میں لیلا کی مدد سے فرش سے اٹھتا ہوا بولا۔ اسے ماحول بنانا کہتے ہیں، اور اس ماحول کی وجہ سے مجھے لکھنے میں مدد ملتی ہے، لیلا نے فرش سے اٹھاتے ہوئے مجھے جواب دیا۔ یار، ہارر کے بجائے کچھ اور لکھو، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی رومانوی ناول لکھ لو، لیلا بولی کہ زیادہ نخرے مت دکھاؤ، جلدی سے ناشتے کی میز پر آؤ، دیر ہو گئی تو دفتر میں ڈانٹ پڑے گی۔ اتنا کہہ کر لیلا کمرے سے باہر چلی گئی اور میں آ کے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی لیلا نے چائے کا کپ میرے سامنے رکھا اور ساتھ ہی توست پر مکھن لگا کر چائے کے ساتھ مجھے دیا اور خود چائے پینے لگی۔ تم ناشتہ نہیں کرو گی؟ میں نے توست کھاتے ہوئے لیلا سے پوچھا۔ ابھی موڈ نہیں ہے، مجھے یہ ناول ختم کرنا ہے، لیلا چائے پیتے ہوئے بولی، اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک ہارر ناول تھا جسے وہ پڑھ رہی تھی۔ ہارر ناول؟ تم یہ کیا بکواس پڑھتی رہتی ہو؟ میں نے اس کے ہاتھ سے ناول لیتے ہوئے کہا۔ میں ہارر کہانیاں لکھتی ہوں تو ہارر ناول ہی پڑھوں گی نا، لیلا میرے ہاتھ سے اپنا ناول لیتے ہوئے بولی۔ یہ ہارر رائٹرز اپنے قارئین کو جھوٹی باتوں سے کیوں بہلاتے ہیں؟ میں نے ناشتہ ختم کر کے چائے پیتے ہوئے لیلا کو چھیڑا۔ جھوٹی باتیں کیا مطلب؟ لیلا نے ناول بند کر کے میز پہ رکھتے ہوئے تیوریاں چڑھا کر میری جانب
देखा ये जिन भूत आसेब चुड़ैल वगैरह ये सब झूठ है या नहीं, मैंने मुस्कुराकर पूछा। मेरे और लैला के दरमियान इस तरह बहसें होती रहती थी। दरअसल मुझे अपनी प्यारी बीवी लैला को छेड़ने में बहुत मज़ा आता था। ये जिन भूत झूठ कैसे हो सकता है, ज़रा बताओगे? लैला तुनक कर बोली। या तो तुमने कभी कोई भूत देखा है? लैला के सवाल के जवाब में मैंने कहा, हाँ देखा है। लैला ने इत्मीनान के साथ जवाब दिया। क्या क्या तुमने सचमुच का भूत देखा है? मैंने बेयकीनी की कैफियत में लैला से पूछा। हाँ। कहाँ? कब? मुझे यकीन नहीं आ रहा था। यहीं इसी कमरे में। बल्कि वो भूत तो हमारे साथ इस घर में रहता है। लैला के इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। कौन सा भूत? किसका भूत देखा है तुमने जो हमारे घर में हमारे साथ रहता है? मैं सचमुच परेशान हो गया। अंकल फ़िरोज़ी का, जो इस घर के पहले मालिक थे और जिनका एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। इन्हें अपने घर से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वो मरने के बाद भी इस घर को छोड़ने पर तैयार नहीं हो रहे हैं। लैला ने तफसील बताई। लेकिन लेकिन मुझे तो वो कभी नज़र नहीं आया। मेरा लहजा बेयकीनी की कैफियत से भरा हुआ था। वो अक्सर तुम्हारे जाने के बाद आते हैं, लैला ने जवाब दिया। फिर अचानक वो मेरे पीछे देखती हुए बोली, लो आज अंकल फ़िरोज़ी तुम्हारे सामने ही आ गए। इतना कहकर लैला ने मेरे पीछे की जानिब देखा और कहा, आइए आइए अंकल, हमारे साथ बैठकर नाश्ता कीजिए। लैला के ये सब कहने पर मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर अपने पीछे देख रहा था कि अचानक मेरे बराबर वाली कुर्सी खिसकी तो मैं उछल पड़ा। ये कुर्सी किसने खिसकाई है? मेरी पेशानी पर पसीना चमकने लगा। फिर मैंने मेज़ के नीचे झांका तो मैंने देखा कि लैला ने अपना पैर आगे बढ़ाकर कुर्सी को खिसकाया था। ये सब क्या है? मैं अपनी पेशानी से पसीना पोंछने लगा। लैला मेरी कैफियत देखकर बेसाख्ता हंस पड़ी। तुम मैं इतना कहकर अपनी जगह से उठा और लैला के सामने जा खड़ा हुआ और इसे कंधों से पकड़कर खड़ा हो गया। तुम बाज नहीं आओगी? मैंने लैला से कहा और उसके चेहरे को देखा तो इसने मुझे पीछे धक्का दिया और कहा, जाइए दफ्तर के लिए देर हो जाएगी। फिर आपका वो खड़ूस बाज रोज़ाना की तरह आप पर चीखेगा। लैला ने मेरे वेजिस ठीक करते हुए कहा, इसीलिए कहता हूँ कि रोमानी नावल लिखा करो, कुछ रोमांटिक हो जाओगी। मैंने नाश्ते की टेबल से अपना कैप उठाते हुए कहा तो लैला हंस पड़ी और मैं अपने दफ्तर जाने के लिए घर से निकल पड़ा। मैंने अपनी सरकारी जीप पुलिस हेडक्वार्टर के सामने रोकी तो एक हेड कांस्टेबल जल्दी से मेरी जीप के करीब आया और मुझे सैल्यूट मारकर सलाम किया। मैंने जीप का दरवाज़ा खोला और जीप से नीचे उतरते हुए कांस्टेबल के सलाम का जवाब दिया और हेडक्वार्टर के मरकज़ी दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिए। पुलिस कांस्टेबल जीप का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और जीप को हेडक्वार्टर के पार्किंग एरिया की जानिब लेकर चल दिया। मैंने एक नज़र जीप पर डाली और फिर दरवाजे से गुजरकर हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हो गया। हेलो कैसे हो? हेडक्वार्टर की राहदारी में मुझे डॉक्टर सलमान मिले, जिन्होंने मुझसे पुरतपाक मुसाफा किया और मेरा हाल चाल पूछा। सलमान पुलिस के अस्पताल के एमडी हैं और अक्सर हेडक्वार्टर आते रहते हैं। फ़ाइन, आप सुनाइए, एमडी बनने के बाद कैसी गुजर रही है? मैंने डॉक्टर सलमान से पूछा क्योंकि वे हालिया दिनों में ही उनकी प्रमोशन हुई थी और वो प्रमोशन पाकर एमडी बने थे। बहुत मुश्किल जॉब है, इंतज़ामी मामलात देखना। डॉक्टर सलमान मेरे साथ लिफ्ट की जानिब चल पड़े। यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने लिफ्ट के साथ खड़े होते हुए फिर पूछा। मुझे कुछ बजट वगैरह के सिलसिले में मीटिंग है, इसलिए आया था, डॉक्टर सलमान बोले। इतने में लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो मैं और डॉक्टर सलमान लिफ्ट में दाखिल हो गए। मैंने 7 फ्लोर का बटन दबा दिया। आपको शायद बजट डिपार्टमेंट जाएंगे? मैंने पूछा तो डॉक्टर सलमान ने हाँ के अंदाज में सर हिला दिया। डॉक्टर सलमान का खामोश जवाब पाकर मैंने 5th फ्लोर का बटन प्रेस किया क्योंकि बजट डिपार्टमेंट 5th फ्लोर पर है। 5th फ्लोर पर डॉक्टर सलमान मुझे बाय कहते हुए लिफ्ट से उतर गए। फिर मैं भी 7th फ्लोर पर अपने दफ्तर के सामने लिफ्ट से निकला और गुनगुनाते हुए अपने दफ्तर में दाखिल हुआ। हेलो सईदी साहब, आज फिर आपको देर हो गई। दफ्तर में दाखिल होते ही मुझे गनाया दिखाई दी, जो फ़ाइल हाथ में लिए बॉस के दफ्तर से बाहर निकल रही थी। रोज़ ही देर हो जाती, अब तो दफ्तर के लोगों को भी इस बात का आदी हो जाना चाहिए। मैंने भी ढीठ पने से जवाब दिया। चीफ 2 दफ़ा आपको पूछ चुके हैं और आपके दफ्तर में भी एक साहब बैठे हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, गनाया बोली। पहले चीफ से मिल लेता हूँ, फिर दफ्तर में आए हुए साहब
को भी देख लेंगे, मैंने गनाया को जवाब दिया और अपनी टोपी सर पर ठीक तरह से जमाते हुए चीफ के कमरे की जानिब तेज़ कदमों से चल दिया। मैं आई कम इन सर? मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए अपने बॉस चीफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से पूछा। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, चीफ ने अपने सामने रखी फाइल बंद करते हुए कहा तो मैं कमरे के अंदर दाखिल हो गया। चीफ ने इशारे से मुझे बैठने का कहा तो मैं इनका शुक्रिया अदा करते हुए इनकी मेज़ के सामने रखी कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठ गया। फिर मैंने अपने सर से टोपी उतारी और अपने सामने रख दी। सैयद मोहम्मद कैस अल सईदी, चीफ ने मेरे पूरे नाम से मुझे मुखातिब किया तो मेरे जहन में ख़तरे की घंटी बजने लगी। अमूमन चीफ और दफ्तर के दीगर अफराद मुझे सईदी के नाम से ही पुकारते हैं, मगर इस वक्त चीफ ने मुझे मेरे पूरे नाम से पुकारा तो मेरे दिमाग में ख़तरे की घंटी बजने लगी। यकीनन कोई मुश्किल केस आया होगा, अब चीफ और केस मेरे सुपुर्द करेंगे। मैं पूरे ध्यान से चीफ की बातें सुनने लगा। तुम्हारे कमरे में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त सलमान कारा बैठा है। वो मेरे बचपन का दोस्त है, अभी हाल ही में यहाँ मुंतकिल हुआ है। इसका मसला सुन लो, चीफ ने तमहीद बांधी। जी बेहतर, मैंने जवाब दिया और अपनी टोपी उठाई और खड़ा हो गया, मगर चीफ ने इशारे से मुझे फिर बैठने को कहा। सलमान से मिल लेना, मगर पहले ये बताओ फेडरल मिलिट्री के PA मिस्टर रजाइन की मौत की तहकीक कहाँ तक पहुँची है? चीफ ने कुछ दिन पहले मुझे दिए गए केस के बारे में पूछा। मिस्टर रजाइन फेडरल सेक्रेटरी अहमद सादिक के पर्सनल PA थे और एक हफ़्ता कबल अपने घर में मुर्दा पाए गए थे। सर, मैंने पूरी तहकीक की है, मगर इनके कत्ल का कोई सुराग नहीं मिला। इनकी मौत तबई मालूम होती है, मैंने जवाब दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या लिखा है? चीफ ने जवाब दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट काफ़ी हैरत अंगेज़ है। पोस्टमार्टम के मुताबिक मिस्टर रजाइन की मौत सांस घुटने से हुई है। मैंने जवाब देकर 1 मिनट के लिए रुक गया। किसी ने इनकी नाक या मुंह पर तकिया रखकर इनकी सांस घूंट दी हो? चीफ ने खदशा जाहिर किया। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। इनके फेफड़े भी सही हालत में हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर रजाइन सांस लेना भूल